ڈرائیور بیربل گینانی کو کس مقام پر قتل کیا گیا، گاڑی کہاں پر رکی، CCTV فوٹیج سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ لیاری ایکسپریس وے گارڈن انٹرچینج کے قریب گاڑی پر فائرنگ ہوئی، کچھ دور چلنے کے بعد گاڑی سولجر بازار تھانے کی حدود میں داخل ہو کر دیوار سے ٹکرا کر رکی۔ ملزمان 2 موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ DIG ساؤتھ عرفان بلوچ کے مطابق وقوع کے مقام پر برآمد 9mm کے 2 خول فرانزک کے لیے بھجوا دیے گئے، مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری۔ کراچی سے مدینہ جانے والی پرواز میں اڑان سے پہلے ہی فنی خرابی، فرین ایئر کی ER911 کی روانگی میں تاخیر، 290 مسافروں کو جہاز بٹھا کر آف لوڈ کر دیا، مسافروں کو ہوٹل منتقل کر دیا گیا۔ ایویشن ذرائع کے مطابق رات 8:30 بجے کراچی سے مدینہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ 93 برس قدیم ڈافل ہیرسٹ اسکول خالی کرانے کے خلاف حکم امتناعی مل گیا، 2 روز سے سراپا احتجاج، طالبات وقتی ریلیف ملنے پر خوشی سے نہال، 10 روز تک اسکول خالی کرانے کی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ 5000 گز پر پھیلے اسکول میں 700 طلبہ زیر تعلیم تھے۔ سائبر ڈی ایبر فیملی کی ایک اور رکن نے جائیداد کے حصول کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی، عدالت نے اسکول خالی کرانے کا حکم دیا تھا۔ ہمارے جو بڑے ہیں، جیسے ہمارے جو سیکریٹری صاحب ہیں، یا ان کی طرف سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اسٹے کے لیے آئی تھنک اپلائی کیا گیا ہے وہاں پر کورٹ میں، اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد جو ہے ہمارے پاس اس کا آرڈر آ جائے گا کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ مہلت دے دی گئی ہے، اور پھر میرا خیال ہے کہ جو فردر ہے وہ اس کیس کو فالو کیا جائے گا۔ پاکستان اسٹیل ملز انڈسٹریل ایریا میں کمپنی کے مزدور انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج، روزے کی حالت میں دھوپ اور گرمی میں زمین پر بیٹھے مزدوروں نے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ہر مہینے تنخواہ سے کٹوتی کر لی جاتی ہے، بونس بھی نہیں دیا جا رہا، گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں، مزدور چیخ اٹھے، 30 برس سے کمپنی میں کام کر رہے ہیں، مستقبل نہیں، کیا کہاں جا رہا ہے۔ مظاہرے میں شامل خواتین کا شکوہ، مطالبات منظور نہ ہونے پر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کا عندیہ۔ افسران سرکاری گاڑیاں اپنی ملکیت سمجھ بیٹھے، سرکاری افسران تبادلے کے بعد گاڑیاں واپس کرنے سے گریزاں، ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کرنگی بھی DMC سینٹرل کی 2 گاڑیاں لے اڑے، ایک گاڑی سابق میونسپل کمشنر سمیرہ حسین کے زیر استعمال، سابق ڈائریکٹر چارج پارکنگ بلدیہ وسطی شریف خان کے استعمال میں 2 گاڑیاں۔ محمد ارشد نے 3 سال گزر جانے کے باوجود بھی سرکاری گاڑی واپس نہیں کی، میونسپل کمشنر بلدیہ وسطی آفاق سعید نے سرکاری گاڑیاں طلب کر لی۔ سدرن گیس کے سحر و افطار میں گیس کی فراہمی کے دعوے دھرے رہ گئے، SSGC کی مجموعی طور پر 250 سے 270 MMCFD گیس کی کمی، مختلف علاقوں میں کم پریشر اور گیس بند ہونے کی شکایات بڑھنے لگی۔ متاثرہ علاقوں میں گورنگی نمبر 6، گلستانی جوہر، بلاک 20، خواجہ اجمیر نگری شامل، نارتھ کراچی سیکٹر 11C، ماڑی پور، بابا بھٹ شمس آئی لینڈ، منوڑا، لانڈھی اور بلدیہ میں گیس غائب، لیاقت آباد، ہجرت کالونی، اولڈ سٹی ایریا، گارڈن، ڈیفینس، صدر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ، گڈا، کاٹھور، اسکیم 33، منگو پیر، تیسر ٹاؤن سمیت کئی علاقوں میں گیس کی آنکھ نچولی، محدود آمدنی میں باہر سے کھانا خریدنا ممکن نہیں، شہریوں کا شکوہ۔ نہ سحری کا ٹائم آتا ہے نہ صبح کا ٹائم آتا ہے، ہم تو روٹی کھانے پہ مجبور ہیں، نہ کھانا پکا سکتے ہیں، نہ بچے بھوکے اسکول جاتے ہیں۔ گیس کا بل تو ایسی بس دے رہے اور پیسے فری فنڈ میں دے رہے، کوئی نہ گیس ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ پریشان ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو گیس نہیں ہوتی، رات کو جب سونے لگتے ہیں تو پوری رات گیس کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اور گیس نہیں ہوتی، اور غریب عوام میں ابھی گیس خریدنا ہی مشکل ہو گئی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس، کراچی میں گیس بحران پر بریفنگ، ماہ سیام کے دوران گیس کی فراہمی میں تعطل پر وزیراعظم کا حکام پر برس پڑے، گیس فراہمی کے عمل کی مسلسل نگرانی کرنے اور کوئی کوتاہی نہ برتنے کی ہدایت، کہا گیس فراہمی کے حوالے سے جامع حکمت عملی اپنانی چاہیے تھی۔
शरीफ आबाद में सीवरेज के अफसरान की नाअहली के बायस गटर उबलने लगे। इलाका मकीनों को शदीद अजियत का सामना। मकीन कहते हैं रमजानुल मुबारक में एमडी वाटर बोर्ड की हिदायत के बावजूद मसाजिद और इमाम बारगाहों के बाहर सफाई सुथराई ना होने के बराबर वाटर बोर्ड के बिलों की अदायगियां भी की जा रही हैं। इसके बावजूद इदारा काम करने को तैयार नहीं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कारनामे। बंगोरिया गोड अजीजाबाद में आबादी के बीच में डंपिंग पॉइंट बना दिया। ताफुन के बायस आवाम को शदीद परेशानी का सामना। शहरियों का डंपिंग पॉइंट दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करने का मुतालबा। दवाएं हैं ना ही पीने का पानी। लियारी डिस्ट्रिक्ट 700 नाले पर कायम डिस्पेंसरी में सेहत की सहूलियात का फुकदान। डिस्पेंसरी को डॉक्टर्स की बजाय नर्सेज के जरिए चलाए जाने का इंकशाफ। नाले पर कायम खस्ताहाल डिस्पेंसरी से अमले और मरीजों की जानें भी खतरे में। डाकखाना पर कायम लियाकताबाद डिस्पेंसरी जच्चा बच्चा की इमारत खस्ताहाली का शिकार। इमारत में लगे पंखे नकारा हो चुके। 8 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल में एक डॉक्टर 24 घंटे तैनात। मरीज इलाज के लिए तवील इंतजार पर मजबूर। मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कमिश्नर कराची खुद इन एक्शन। मोहम्मद इकबाल मेमन ने मुनाफाखोरी रोकने के लिए बचत बाजारों के दौरे शुरू कर दिए। डीसी मरीर इरफान इस्लाम के साथ मेमन कोट, कायदाबाद और भटाइयाबाद में बचत बाजारों का दौरा। कहा सिंध हुकूमत की जानिब से आटे की सप्लाई शुरू हो गई। चीनी की सप्लाई भी जल्द शुरू हो जाएगी। शहरियों की शिकायत पर इंतजामिया फौरी एक्शन लेगी। कराची में फ्रूट बाइकआउट मुहिम मकबूल होने लगी। अवामी इफ्तार दस्तरखान भी फलों के बगैर सजने लगे। शहर की कारोबारी और समाजी शख्सियात डेप्यूटी कम्युनिटी पुलिस चीफ ख्वाजा जमाल सेठी का इफ्तार दस्तरखान पर भी फलों के बगैर। जमाल सेठी कहते हैं कि मुनाफा खोरों को सजा मिलनी चाहिए। महाजर कौमी मूवमेंट का अवाम दोस्त इक़दाम। लांढी नंबर 6 में रमजान बचत बाजार सजा दिया। लांढी में लगे बचत बाजार में आटा, घी, तेल और चीनी वाफर मिकदार में मौजूद अशिया को होलसेल रेट पर फरोख्त किया जा रहा है। रमजान में गैर कानूनी चार्ज पार्किंग करने वाले बेलगाम। रमजान के दूसरे और तीसरे अशरे में ईद की खरीदारी बढ़ने का रुझान। नए बाजारों के साथ गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल मामूल। डायरेक्टर चार्ज पार्किंग कयूम खान कहते हैं महकमा चार्ज पार्किंग ने विजिलेंस टीमें तश्कील दे दी। गैर कानूनी चार्ज पार्किंग रोकने के लिए डीएमसी से भी राबते में है। रेलवे पाकिस्तान में नई कोचेस की शमूलियत। पाकिस्तान रेलवेज की 70 कार्गो वैन चीन से कराची पहुंच गईं। नई कोचेस के लिए बहरी जहाज कराची बंदरगाह पर मंगल को लंगर अंदाज हुआ। कराची पहुंचने वाली 70 कोचेस मुख्तलिफ माल बरदार गाड़ियों में लगाई जाएंगी। माल बरदार कोचेस में 70 टन वजन साथ ले जाने की सलाहियत मौजूद। फ्रेट ऑपरेशन बेहतर और माल बरदार गाड़ियों की तादाद में इजाफा। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुआहदे के तहत मजमूई तौर पर 230 कोचेस मंगवाई जाएंगी। जिला बस्ती में डायरेक्टर एजुकेशन का स्कूलों का अचानक दौरा। डायरेक्टर एजुकेशन ने मरदमशुमारी पर गए असातिज़ा की गैर हाजिरी लगवा दी। म्यूनसिपल कमिश्नर आफाक सईद का कहना है कि मरदमशुमारी पर मौजूद टीचर्स की तनख्वाह में कटौती नहीं होगी। सिंध हुकूमत ने अफसरान का बहरान खत्म करने के लिए अहम फैसला कर लिया। 170 नए अफसरान भर्ती किए जाएंगे। 17 ग्रेड के महकमा ज़राअत में 141 रिसर्च अफसर भर्ती होंगे। महकमा कानून में 2, महकमा खजाना में 15 अफसरान तैनात किए जाएंगे। नई भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने नई भर्तियों का शेड्यूल जारी कर दिया। आमिर लियाकत की वीडियोस वायरल करने का केस। दानिया शाह के वकील ने बयान दोबारा कलमबंद कराने की दरख्वास्त कर दी। दोबारा सवालात की इजाजत दी जाए। वकील सफाई का मौक़िफ़। अदालत की जानिब से FIA और मुद्दइया को नोटिस जारी। कानून की रोशनी में बताएं कि दरख्वास्त कैसे काबिल समात है। आइंदा खामखा अदालती वक्त के ज़िया पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। जस्टिस KK आगा के रिमार्क्स। सेंट्रल जेल में करप्शन और तशद्दुद के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। दरख्वास्त गुजार अदालत को दलाइल से मुतमईन करने में नाकाम। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दे दी।
मंगू पीर बिल्डर से 1.5 करोड़ रुपए भत्ता तलब, बिल्डर फुरकान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, बिल्डर की जानिब से 9 लोग मुकदमे में नामजद। 27 मार्च को सफ़ेद डबल कैबन में सवार कुछ लोग आए, नाजेबा जबान में बात की, भत्ता ना देने पर जान से मारने की धमकी दी, असलहा के जोर पर माहाना भत्ते का तकाजा किया, तशद्दुद किया और असलहा छीनने की कोशिश की। FIR का मतन। मनशियात फरोशों और गुटखा माफिया के खिलाफ टास्क फोर्स कायम कर दी गई। DIG स्पेशल ब्रांच आसिफ एजाज शेख कहते हैं मुनज़्ज़म जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन होगा। खुसूसी टास्क फोर्स सिंध में कहीं भी कार्रवाई कर सकेगी। बड़े पैमाने पर गुटखा ले जाने वाले और सप्लाई करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब अज़-खुद नोटिस से मुतल्लिक कानून साजी के दफा में बोल पड़े। तर्जुमान सिंध हुकूमत कहते हैं आइन पाकिस्तान के तहत पार्लियामेंट सबसे मुकद्दम इदारा है। सोमोचों के खिलाफ अपील का हक होता तो नस्ला टावर ना गिरता। उम्मीद है कि सदर मुमलिकत बिल पर जल्द दस्तखत कर देंगे। डॉलर की किल्लत से एयरलाइंस के अरबों रुपए फंस गए। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का तशवीश का इजहार। अयाटा के मुताबिक रवां बरस जनवरी तक $290 मिलियन फंसे। गैर मुल्की एयरलाइंस को पाकिस्तान से फ्लाइट ऑपरेशंस में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। हुकूमत पाकिस्तान मसले के हल के लिए इक़दाम करे। नया नाज़िमाबाद बैंकर्स कप रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट। उमर एसोसिएट्स और हेलारूस की टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। उमर एसोसिएट ने पहले बैटिंग करते हुए रवां बरस जनवरी तक $290 मिलियन फंसे। गैर मुल्की एयरलाइंस को पाकिस्तान से फ्लाइट ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। हुकूमत पाकिस्तान मसले के हल के लिए इक़दाम करे। शहर कायद में स्क्वैश के जहांगीर और जान शेर की तलाश के लिए तरबियत कैंप जारी। नए टैलेंट की तलाश और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकाबलों के लिए खिलाड़ियों की इंटरनेशनल मेयार की ट्रेनिंग और इन्हें ग्रूमिंग करने में क्वालिफाइड कोचेस के ज़रिए निगरानी ट्रेनिंग। खिलाड़ियों का कहना है कि इनकी कोशिश है कि वो ज़्यादा मेहनत से मुल्क का नाम रोशन करें। सिटी 21 की नशियात रमज़ान मेहरबान में आज का मौजू रिश्ता अज़वाज रहा। प्रोग्राम में आलिया सालिम बर्नी, मौलाना अब्बास जाफरी, नुसरत राना डार और शहनाज मंसूर खान ने उन्वान पर गुफ्तगू की। रमज़ान मेहरबान प्रोग्राम में शेफ नोइन आरिफ ने पेनविल समोसा और दी 7 ड्रिंक बनाया। और रमज़ान में दर्जी के नखरे आसमान पर, किसी ने दाम बढ़ा दिए तो कोई कपड़े सीने से इनकारी। डिफेंस फेज 2 के दर्जी कहते हैं लोड शेडिंग के बायस कारोबार मुतासिर हो रहा है।